Good morning, everyone. In the previous lecture, we started with the methods of calculation of national income. Basically, there are three methods. First method is output method, in which, right, we take the sum of final goods and services produced in that accounting year in the entire economy. There can be two approaches. One is final goods approach, and second is net value approach. Final goods approach and net value approach. In final goods approach, we take the value of the final goods and services produced in the economy in that year. We will divide the economy into various sectors. Each sector will be again divided into subsectors. ऐसे like division होगा. We will reach to the smallest part of the economy, and we will find out the value of the final goods and services produced by each firm, each sector, and the entire economy. So final goods approach मतलब हम खाली final goods के value लेंगे. We will ignore all intermediate goods values, intermediate services के values, raw materials के value हम नहीं लेंगे. Try to understand. This is one approach. मतलब take the value of the shirt and ignore the value of the cotton. Take the value of the sugar, ignore the value of sugar cane. Are you getting my point? So you should understand that. So हम final goods की and services की value calculation में consider करेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है final goods approach और the final product approach. ठीक है? क्या लिखा है देखो वहां पे अंडरलाइन किया, value of all final goods and services produced in the primary, secondary and tertiary sectors are included, and value of all intermediate transactions are ignored. ठीक है? उससे भी right, the value of the final output includes the value of intermediate goods. Why we exclude the value of intermediate goods? Because जब हम शर्ट की वैल्यू ढूंढते हैं उसमें सब रॉ मटेरियल्स की इंक्लूडिंग दैट यूर कॉटन की भी वैल्यू इंक्लूड होती है. जब हम शुगर की वैल्यू देखते हैं it includes the value of the sugar cane as well. So the value of the final goods also includes value of the intermediate goods, and अगर आप intermediate goods को अलग से लोगे तो that will result in the double counting. शुगर केन शुगर के वैल्यू में भी आएगा और अलग से लेते हो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, अननेसेसरी नेशनल इनकम इन्फ्लेट हो जाएगी. ठीक है? एंड देयरफॉर वी इग्नोर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन वी फॉलो द फाइनल goods approach or the final product approach. The second that we should understand is value added approach. Means we will, right, whenever goods and services are produced, they pass through multiple processes, and we will find out the value added at each process. Suppose it is a production process, process 1, process 2, process 3, process 4. There are 4 processes, and then it becomes final product. So the value added by process 1 plus process 2 plus process 3 plus process 4 will be added to find out the net value added by the entire production process, which will be again equal to your final value of goods and services. Try to understand what is the value added by each process. It is output of the process, value of the output at of the process minus value of the input of that process. Like example, you can see in this example, right? We are manufacturing shirt. So try to understand. We purchase cotton almost for nil value, almost. Matlab to manufacture, like to produce cotton, the farmer requires some inputs. We have assumed them 0, otherwise it will become very complicated. हमने इसको 0 माना है. Farmer procure in like his raw material at 0 cost assumed, and then he sold cotton for 150 to a mill. उसने cotton sell किया 150 at 150 to mill. So value added by farmer is 150. फिर वो 150 पे परचेस हुआ, एंड देन उस पे प्रोसेसिंग करके यान करके उसको 250 में सेल किया गया. सो फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें कॉटन मैन्युफैक्चर कॉटन प्रोड्यूस हुआ, सेकंड में यान मैन्युफैक्चर हुआ,
एंड थर्ड में क्लोथ मैन्युफैक्चर हुआ. सो कॉटन, yarn एंड क्लोथ, this is a process. So farmer produced cotton, his inputs were 0, and cotton he sold to the mill for 150. Output value is 150. So value added by him is output value minus input value 150. So at stage 1 the value addition is 150. जब stage 2 पे गया, yarn stage पे गया, तो 150 में कॉटन लिया था, एंड जब वो यार्न बना होगा तब उसकी वैल्यू 250 रुपीज होगी. इफ यू सेल यार्न इन द मार्केट तो 250 में सेल होता है, बट आपने मिल में ही यूज किया है, आपने मिल में ही यूज किया है टू मैन्युफैक्चर व्हाट, क्लोथ. सो जो यार्न बनाने की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, राइट, उसकी इनपुट वैल्यू 150 है, सेकंड स्टेज की इनपुट वैल्यू 150 है, आउटपुट वैल्यू 250 है, तो वैल्यू एडिशन इज 100 एट स्टेज 2. एंड जब वो क्लोथ बनाने के लिए गया, राइट, तब उसकी इनपुट कितनी है, 250 यार्न. मिल परचेस्ड यार्न एंड दे मैन्युफैक्चर क्लोथ, एंड दिस क्लोथ बनाने से, राइट, क्लोथ की वैल्यू 400. इफ यू सेल द क्लोथ एज इट इज, रेडीमेड क्लोथ अगर मार्केट में सेल करते तो उसकी प्राइस 400 है. तो आपने यार्न परचेस किया था 250 में, क्लोथ जो बना है, वो जो आउटपुट बना है, अगर वो मार्केट में सेल करते तो 400 पे सेल होगा. तो क्लोथ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब उस प्रोसेस की वैल्यू कितनी होगी, नेट वैल्यू एडिशन इज 400 माइनस 250, 150. बट हमने क्या किया, हमने वो मार्केट में सेल नहीं किया क्लोथ, हमने उसको मिल में यूज किया टू मैन्युफैक्चर शर्ट. तो टू मैन्युफैक्चर द शर्ट, राइट, हमें क्लोथ जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी वैल्यू 400 है, एंड हमने उस पर प्रोसेस वगैरह किया एंड शर्ट बनाया, वो हो गया 500. शर्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 500. तो ये जो फाइनल गुड्स, राइट, दिस इज योर फोर्थ स्टेज, उसमें 100 रुपीज वैल्यू एडिशन हुआ है. स्टेज 1 पे 150, कॉटन की वैल्यू 150 है बोलो, यार्न की वैल्यू 100 है बोलो, क्लोथ की वैल्यू 150 है, खाली क्लोथ बनाने की वहां पे वैल्यू एडिशन 150 है, एंड शर्ट के लिए एडिशन 100 है, कॉटन के लिए एडिशन 150 है, यार्न के लिए एडिशन 100 है, क्लोथ के लिए एडिशन 150 है, फाइनल शर्ट के लिए एडिशन 100 है, टोटल एडिशन इज 500 विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो या तो आप डायरेक्टली 150 ले लो, दिस इज फाइनल गुड्स अप्रोच, या आप वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ले लो, राइट, दैट इज वैल्यू एडेड अप्रोच. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोचेस, बट द आंसर रिमेन सेम. अप्रोच अलग अलग है, बट द आंसर रिमेन्स सेम. नेक्स्ट, what are the precautions that one should take while following final goods approach or value added approach? First, to avoid double counting, only value of final goods and services must be taken into account, right? दूसरा, goods used for self consumption, farmers जितने फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से सम, और उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उनमें से कोई चीज है वो सेल्फ कैप्टिव कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं. हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में वैसे होता है. यू कीप समथिंग फॉर योर ओन कंजम्पशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, वो जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए रखा है ना, उसको भी, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्शन, इट इज एक्चुअल आउटपुट इन दैट ईयर, हमने उसको भी नेशनल इनकम में लेना चाहिए. जो मार्केट में आए तो उसकी तो वैल्यू हमें पता चलेगी, बट जो खुद कंज्यूम हुआ है, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए रखा है, वो तो प्रोडक्शन है, तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो वो भी हमने नेशनल इनकम में लेना चाहिए ऑन गेस वर्क बेसिस. आगे, ठीक है, बाय द फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय द गेस वर्क. imputed hidden value, imputed means hidden value of goods produced for the self consumption is included in the national income. Indirect taxes, should we include indirect taxes? No, indirect taxes should be excluded. देखो, जब भी गुड्स मार्केट में आते तो दे आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो हमें जीएसटी माइनस करना है, एंड अगर उस पे कोई सब्सिडी मिलेगी, लाइक सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, हमें मार्केट वैल्यू चाहिए. तो मार्केट वैल्यू इज व्हाट, राइट, मार्केट वैल्यू चाहिए, टैक्सेस नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, टैक्सेस तो गवर्नमेंट लगा रही है, तो मार्केट वैल्यू हमें अगर ढूंढनी तो उस मार्केट वैल्यू में टैक्स ऐड हुआ होगा ना, तो टैक्स माइनस करो, एंड सब्सिडी माइनस हुई होगी, सब्सिडी को ऐड करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उन्होंने वही लिखा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग द मार्केट प्राइसेस शुड बी डिडक्टेड. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुए होते हैं उनको माइनस करो, एंड सब्सिडीज माइनस हुए होते हैं उनको ऐड करो. वहां से हमें क्या पता चलेगा, एक्चुअल वैल्यू उसकी पता चलेगी, उसके एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी. लाइक जब ये मार्केट में शर्ट 500 रुपीज पे आएगा, तब ये 500 पे नहीं आएगा, उस पर टैक्स ऐड करके आएगा.
उस पे कुछ जीएसटी ऐड करके आ गया, सपोज 50 रुपीज जीएसटी है, तो मार्केट में वो 550 पे दिखेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो हमें उसकी एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी 500 है, बिकॉज उसमें टैक्स ऐड हुआ है तो हम टैक्स माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी एक्सक्लूडेड। सब्सिडी माइनस की होती है बिकॉज गुड्स आर सोल्ड एट ए सब्सिडाइज्ड प्राइस। एग्जांपल एलपीजी, केरोसिन, राइट, वो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे सेल किए करते हैं, राइट। यू कैन टेक रेलवेज के केस में जो टिकट्स वगैरह होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं। महाराष्ट्र डेपो के बसेस देखो, उनके जो फेयर्स होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, तो गवर्नमेंट उन पे सब्सिडी देता है, कम रेट लगाती है। तो हमने एक्चुअली उनको है ना एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना चाहिए, सब्सिडी हमने एक्सक्लूड करनी चाहिए। अगेन वो जो नेशनल अकाउंटिंग टीम होती है, दे कंसीडर, राइट, सम, अब उनका केस वर्क रहेगा कितनी सब्सिडी होगी क्या होगी, दे विल ट्राई टू गेट डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल, राइट। तो वो उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाएगा, सब्सिडीज को ऐड किया जाएगा। आगे, while evaluating the output, जब हम आउटपुट इवेल्युएट करते हैं, राइट, चेंजेस इन द प्राइसेस लेवल, राइट, लाइक इन्फ्लेशन और डिप्रेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, राइट, ग्रोथ इज ओनली इफ एक्चुअल आउटपुट इज इंक्रीजिंग। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ही ग्रोथ बोला जाएगा। आउटपुट उतना ही है बट प्राइजेस इंक्रीज हो रही है इसलिए इनकम ज्यादा दिख रही है या आउटपुट की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, दैट इज रॉन्ग। हम बोलेंगे ग्रोथ तभी हुई है जब आउटपुट इंक्रीज होता है, एंड एट द सेम टाइम प्राइजेस आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जनरली। तो वी हैव टू टेक सम बेस ईयर। जब भी नेशनल इनकम कोट की जाती है ना, इट इज ऑलवेज मेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ए बेस ईयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विथ रिस्पेक्ट टू दैट ईयर नेशनल इनकम इज दिस, लाइक दैट। मतलब हम प्राइस लेवल को एडजस्ट करते हैं, जो आज की प्राइजेस लेवल है, राइट, हम उसको किसी बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। तो वी शुड, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, we should consider the changes in the prices. ठीक है, value of export should be added and value of import should be deducted, x minus m. Depreciation on final assets should be deducted in order to find out the net national income. Sale or purchase of second hand goods and services should be ignored because वो जब एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए थे, जब फर्स्ट टाइम वो परचेस सेल हुए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वो क्या हुआ था, वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आया था। बट इसके लिए अगर कोई सर्विस दे रहा है, लाइक ब्रोकर, वो ब्रोकरेज लगाता है, कोई कमीशन लेता है, तो ऑब्वियसली दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होता है। आगे, द आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द कंट्रीज which are underdeveloped, right? However, right, it is less reliable because of margin of error. लिखा भी उन्होंने, it is less reliable. In India, this method is used, right, for agriculture, mining, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरर्स, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया। देन उन्होंने लिखा भी है कि ये दिस इज देयर आर एरर ऑफ मार्जिन्स होंगे, दैट इज बाउंड टू हैपन बिकॉज वी आर एज्यूमिंग मेनी थिंग्स। आगे नेक्स्ट ध्यान देना, दूसरी मेथड हमने देखी थी इनकम मेथड। ये जो आपकी आउटपुट मेथड थी, दैट वाज फ्रॉम, राइट, दैट वाज फ्रॉम, राइट, एक सेकंड, यस, output method is also called as product method or inventory method. It is from the output side. It was from the output side. Income method is from the distribution side. This is also called as factor cost method. It is also called as factor cost method and it is from the distribution side. हमने देखा है कि जब household provide services to the firms, firm is, right, provides factor services to the firms. Firms produce goods and services with those services and they sell those goods and services in the market and generate the income. Firms generate the income. This income will be distributed to the various factors of production in the ratio of their contribution. Right? उनके contribution के हिसाब से, right, उनको क्या मिलेगा, returns मिलेंगे. Land will get rent, labor will get wages, capital will get interest and entrepreneur will get profits. So distribution hoga. So we are talking about the firm generate factor income and distribute it to the household. So we are talking about this income.
सो हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड, इसलिए बोला जाता है राइट नेशनल इनकम। अगर आप इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड. According to this income, the income payments received by all citizens of the country, incomes, they can earn income from the salary, they can earn income from the profession or a business, or like renting out their properties, from the capital gain transactions like sale of assets. Capital gain होते हैं, फिक्स असेट सेल करते हो, इमोरल प्रॉपर्टीज राइट सेल करते हो, उस पर जो गेन रहेगा उसके बाद यू कैन से उस पर वो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह पे करते हैं. अदर सोर्सेज है लॉटरी विनिंग, लाइक आप बोल सकते हो प्राइज विनिंग, कोई आप कंपटीशन में पार्ट लेते हो, लाइक कौन बनेगा करोड़पति जैसे केबीसी में, वहां पे आपको प्राइज मनी मिलता है, वो सब इनकम्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम. ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर कैन बी मेनी काइंड्स ऑफ इनकम्स. वो सब इनकम जब हम ऐड करेंगे ना, तब हमें ऑफ ऑल द सिटीजन्स हमें क्या पता चलेगा, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. ध्यान देना क्या लिखा है. According to this method, the income payments received by citizens of a country in a particular year are added up, and that is income that accrues to all factors of production by way of rent, wages, interest, and profits, right, are added together, but income received in the form of transfer payments is ignored. Output में हमने बोला इंटरमीडिएट वैल्यूज की गुड्स इग्नोर करो टू अवॉइड डबल काउंटिंग. सिमिलरली यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स, लाइक एग्जांपल, आपके पापा जो सैलरी कमाते हैं उनकी पूरी की पूरी सैलरी नेशनल इनकम में ऐड की जाएगी, उसमें से दे गिव यू सम पॉकेट मनी. नाउ दिस पॉकेट मनी शुड नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द नेशनल इनकम, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. वो आपके मम्मी को कुछ डे टू डे खर्चे के लिए पैसे देते, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. यू गेट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम सम एनजीओ, it is a transfer payment. You are getting it without any efforts, without any consideration. Try to understand. आपको कहाँ पे सर्विसेज नहीं देनी पड़ रही है, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान देना. लाइक आपको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के, तो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, फिर भी आपको पेंशन मिलती है. यू शुड नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज हमें इनकम नहीं ढूंढनी है. आउट कंट्रीब्यूशन की वजह से आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोडक्शन में, उसकी वजह से जो इनकम ऐड हो रही है ना, वो आपको लेनी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डू नॉट, बिकॉज ये क्या है कि ना, ये जो पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी ये है पॉकेट मनी है, आपके लिए इनकम है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी भी इनकम वो कंसिडर की जाएगी तो आपके पापा की इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, सो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, देखो क्या हो रहा है. The data pertaining to the incomes are obtained from different sources. Example, income tax returns, reports, books of accounts, as well as estimates for small incomes. So there are many sources through which आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, राइट. but कितना फिजिबल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना फिजिबल है ये भी समझ लो. 125 करोड़ की अपनी मिनिमम पॉपुलेशन है, उसमें से सम 1 करोड़ पीपल फाइल्स द इनकम टैक्स रिटर्न्स. जीएसटी कुछ तो 1.5 करोड़ लोग जीएसटी पे करते. चाहे तो आई कैन शेयर यू वन वीडियो. कल एक वीडियो आया है, अच्छा वीडियो है, बिजनेस टाइम्स का है, मैं आपको शेयर करूंगा. उसमें उसने एक टेंटेटिवली नंबर बोला है 1.5 करोड़ आउट ऑफ 125 करोड़. मतलब क्या है, इज इट 1% ओनली? नो, उससे भी कम रहेगा ऑलमोस्ट. सो वही देखना, तो जो डेटा मिलता है ना, वो कितना ऑथेंटिक देखता है, आप ही रिलाई कर सकते हो उस पर. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि नेशनल इनकम जो हमारी दिखती है ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बट उतना डेटा कलेक्ट नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स, फैक्टर्स इनकम, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट. ठीक है, फैक्टर इनकम्स earned as a result of undertaking economic activity, right, on a part of the resource owners and reflected in the production of the total output, right, during the given period. So जो फैक्टर ओनर्स ने जो सर्विसेज दी है फॉर द कैरिंग आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हुआ है इन दैट ईयर, उसके लिए उनको जो इनकम मिल रही है ना, वो हमने लेनी है. क्या लिखा है, जेएनपी कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स earned क्यों, as a result of undertaking economic activity,
किसने की होगी? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स and reflected in the production of total output of goods and services during that year. Thus, GNP according to income method is calculated as national income is equal to rent earned plus wages earned plus interest earned plus profits earned plus mixed income plus net income from abroad plus net income from abroad. What are precautions to be taken? Transfer incomes or transfer payments like scholarship, gifts, donations, charity, old age pensions, unemployment allowance should be ignored to avoid double counting. All unpaid services, try to understand, like services of housewife, teacher, teaching to her child, etc., should be ignored. Then, any income from sale of second hand goods and services should be ignored. ठीक है? Then, ये इसमें भी आया था, किसमें? बट ये जो आपको लाइक आप लास्ट टाइम किसी बोलता सर OLX वगैरह होता है, वो जो कमीशन लगेगा ना वो आएगा ना, कमीशन इनकम आएगी वो, राइट, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट सर्विस. देन income from sale of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to real national income because it is not a production, it is not the real production. Again, revenue received by the government through indirect taxes or through direct taxes should be ignored. क्यों? बिकॉज मेरी सैलरी 1 लाख है, उसमें से मैंने 10,000 टैक्स पेड किया, तो जब मेरी सैलरी कैलकुलेट की हो गई 1 लाख, नेशनल इनकम के लिए 1 लाख लिया होगा ना, 90,000 नहीं लिया होगा, 1 लाख लिया होगा, उसमें से मैंने गवर्नमेंट को 10,000 टैक्स दिया है. सो जो गवर्नमेंट की इनकम है, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, वो गवर्नमेंट की इनकम है. इट इज एज गुड एज ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज वो 10,000 मेरे इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है. मेरी इनकम 90 नहीं ली नेशनल इनकम के लिए, मेरी इनकम 1 लाख ली है, उसमें से 10,000 मैंने गवर्नमेंट को दिया है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. सो अगर वो भी आप लेते हो तो मेरा तो 1 लाख आएगा प्लस वो 10,000 भी आएगा, 1,10,000 इंक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम में. देयरफॉर वी शुड एक्सक्लूड. ध्यान देना, राइट. रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ इनकम. ट्रांसफर पेमेंट का ही वो टाइप आ गया. आगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज. कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए, हमें पूरे प्रॉफिट्स लेने, इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट है वो तो आएंगे, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, कंपनीज या फर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, दे हैव एक्यूमुलेटेड इट, उन्होंने उनके बैलेंस शीट में रिजर्व्स में रख दिए वैसे के वैसे, राइट, वो भी हमने लेने चाहिए बिकॉज इट इज प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, राइट, गवर्नमेंट ने उनके प्रॉपर्टीज रेंट आउट किए, एग्जांपल टोल, हम टोल पे करते हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे टोल पे करते हैं, रोड्स यूज करते हैं, तो वो भी इंक्लूड करने चाहिए. ठीक है. प्रॉफिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, ONGC, राइट, एग्जांपल कोल, HUL, BPCL, दोज आर द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, उनके भी प्रॉफिट्स हमने कंसीडर करने चाहिए, इनकम्स अर्न बाय देम, राइट. प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड, MSCBC एग्जांपल. समझ में आ रहा है? So we should include the profits of the public sector undertakings as well, PSUs. Then imputed value, right, imputed value of, ध्यान देना, imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of the owner occupied properties should also be included. जैसे हमने बोला था प्रोडक्शन मेथड में जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए आउटपुट रखा है उसको हम गेस वर्क पे लेंगे. Similarly, right, imputed value of the production kept for the self consumption, उससे कितनी इनकम जनरेट होती, उसकी इनकम एक्चुअली आएगी नहीं बिकॉज वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो हमें वो हिडन वैल्यू ढूंढनी होगी गेस वर्क करके. एट द सेम टाइम जिस हाउस में ओनर्स रहते हैं, अगर वो रेंट आउट होता तो कितना रेंट मिलता, वो भी हमें समझना है, राइट. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड. आप अगर इनकम टैक्स सीखोगे इन योर CA इंटर, जब आप इनकम टैक्स सीखोगे यू विल लर्न there is a tax on the self occupied property as well. If you have two properties, अब आपके पास 2 फ्लैट्स है, एक फ्लैट में आप रहते हो, दूसरा फ्लैट खाली है, उस पर रेंट नहीं मिलता, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है. टुडे दे हैव गिवन 2, अब 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है,
तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 3 फ्लैट्स है, 2 फ्लैट्स आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट अगर तीसरा भी फ्लैट है और आपने ऑक्यूपाइड नहीं किया है, वो खाली है, या आपने रेंट भी नहीं किया है, रेंट पे नहीं दिया, वो खाली है, तो उस पे उसको बोलता है डीम्ड लेट आउट। वो माना जाए कि वो लेट आउट है, वो लेट आउट नहीं है, फिर भी हम मानेंगे वो लेट आउट है, और उस पे हम उस एरिया में कितना रेंट है अकॉर्डिंगली वो रेंट पे हमें टैक्स पे करना होगा। आपने उसको खुद भी ऑक्यूपाइड नहीं किया है, रेंट आउट भी नहीं किया है, बट वो खाली है और आपका तीसरा फ्लैट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उस केस में माना जाता है डीम्ड लेट आउट कंसेप्ट। तो उस पे आपको एज्यूम्ड रेंट लिया जाएगा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कंसेप्ट है इनकम टैक्स में। आगे दैट शुड बी इंक्लूडेड। सो दो चीजें इंक्लूड करनी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, income from government properties, income from public enterprises, right, should be included, and imputed value of the production kept aside for captive consumption, and imputed value of the owner occupied properties. Owner occupied property should be included. उसका आप रेफरेंस इनकम टैक्स के डीम लेट आउट कंसेप्ट दे सकते हो. यू विल लर्न दैट इन योर इंटर. इन इंडिया, नेशनल इनकम कमिटी of the Central Statistical Organization CSO, right, uses income method for adding up income arising from trade, transport, professional and liberal arts, right, public administration and domestic services. Then ये हमने जो दो मेथड्स के उसकी रिवीजन थी. द थर्ड मेथड जो हमें करनी हम उसके बारे में बात करेंगे. ध्यान देना, एक्सपेंडिचर मेथड. This method of measuring national income is known as outlay method. ठीक है? According to this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together. मतलब एक हमने देखा पूरे इकोनॉमी कितना आउटपुट हुआ उसको ऐड करो. दूसरा हमने देखा पूरे इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हुई उसको ऐड करो. एंड तीसरा देख रहे पूरी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको ऐड करो, आपको इनकम मिलेगा. तीनों का आंसर आइडियली सेम होना चाहिए. तीनों मेथड का आंसर आइडियली क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए. बिकॉज हम अलग अलग एंगल से नेशनल इनकम देख रहे हैं, आइडियली उनका आंसर सेम ही होना चाहिए. ध्यान देना. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का एक्सपेंडिचर, राइट, शुड बी राइट, बिकॉज किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम होगी ना, तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो आंसर मिलेगा वही इनकम मेथड में मिलेगा. समवंस एक्सपेंडिचर इज समवंस इनकम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हम फैक्टर इनकम देख रहे हैं, मतलब फैक्टर इनकम के लिए जो फर्म्स ने एक्सपेंडिचर किया है ना, अगर आप वो कैलकुलेट करते हो ना तो भी आपको पता चलेगा. आगे, राइट, इन ए पर्टिकुलर ईयर शुड बी एडेड टुगेदर. क्या लिखा है देखो, income can be spent either on consumer goods, your day-to-day goods, or capital goods like fixed assets. Thus we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure made by individuals, firms and government in the society. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था CIG. C, consumption expenditure by household and the firms. Consumption expenditure on day-to-day activities by firms as well as household, plus investment expenditure by firms as well as household, plus government's expenditure. इसमें दो expenditure है गवर्नमेंट के, consumption plus investment. गवर्नमेंट कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते, रूटीन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब रूटीन एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जिस पे रिटर्न जनरेट होंगे वो वाला एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट पुलिस वगैरह उनको सैलरी देती है, लॉयर्स वगैरह उनको सैलरी देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. समझ में आ रहा है? वो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, रेलवे ट्रैक्स डालती है, रोड्स बनाती है, वो लाइक वो सब एक्सपेंडिचर आ गए. लाइक लॉन्च होता है सैटेलाइट्स वगैरह, वो सब एक्सपेंडिचर के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट भी दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है, राइट. कौन कौन से? कैपिटल, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन तीनों ऐड करते, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड, सिंपल वर्ड्स में हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स प्लस प्लस गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर, हमें पता चलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। उसके साथ हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लेना होगा, हमें उसके साथ रिसीट्स माइनस पेमेंट फ्रॉम द फॉरेन रेमिटेंस भी लेने होंगे। तो ध्यान देना क्या है आगे, वही फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया होगा। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड में। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द सोसाइटी, पूरे सोसाइटी में हाउस होल्ड आएंगे, फर्म्स आएंगे, गवर्नमेंट भी आएगा, राइट, बाय द होल सोसाइटी in the particular year is added together, income can be spent, income can be spent। आप जो कमाते हो या तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे डाल सकते हो या इन्वेस्टमेंट पे डाल सकते हो। मतलब आप कंज्यूमर गुड्स पे डालोगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंटायर इनकम can be spent either on consumer goods or on capital goods. Thus, we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure by the individuals, matlab household, firms, as well as government during the year, CIG. Thus, gross national product is found out by C, consumption expenditure by household and firm, I, investment expenditure by household and the firm, G, consumption and investment expenditure by the government, X minus M, net export, net receipts from the foreign transactions. So C का मतलब क्या है ध्यान देना, private consumption expenditure, private consumption expenditure C by household on a non-durable goods, like non-durable goods such as food which are used immediately, expenditure on durable goods like car etc, right, computers, tvs, washing machines etc, which are used for a longer period of time, and the expenditure on services like transport, right, services etc. So as an individual, as a firm, हम जो रूटीन एक्सपेंडिचर करते हैं ना, रूटीन जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है या उससे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, उस पे पैसे डालने से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, आगे सो यहां पे अंडरलाइन करके रखना, राइट, ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, देन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिनसे पैसा डालने से, जिन पे खर्चा करने से रिटर्न नहीं मिलता, वो असेट नहीं होती, वो एक्सपेंडिचर होता है। Then that is C, gross domestic private investment expenditure. It refers to expenditure made by private businesses on replacement, renewal and the new investments. Actually यहाँ पे this definition is not perfect. Actually यहाँ पे लिखा है ना private final consumption, consumption expenditure दो लोग करते हैं, फर्म्स भी लाइक सैलरी वगैरह पे करते हैं, उनका रूटीन एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है हाउस होल्ड और यहाँ पे उन्होंने लिखा है फर्म्स। एक्चुअल में ये हाउस होल्ड प्लस फर्म्स करते हैं, एंड ये भी हाउस होल्ड भी सेविंग्स करता है ना, हाउस होल्ड भी इन्वेस्ट करता है ना पैसा, तो इन्वेस्टमेंट होती है हाउस होल्ड की भी। तो एक्चुअली ये दोनों होने चाहिए। इफ यू गो एंड चेक प्रीवियस, मैंने बोला था लास्ट ईयर में ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे एक चैप्टर था पूरा एग्रीगेट्स बोल के, सी प्लस आई प्लस जी, एक्स प्लस एक्स माइनस एम सी आई, राइट, आर माइनस पी, इस पे पूरा एक चैप्टर था एग्रीगेट्स, उसमें सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच विल नॉट रिजल्ट इन इनकम, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से, उसमें स्पेंडिंग करने से आपको रिटर्न में कुछ तो मिलेगा बाद में, लाइक इन्वेस्टमेंट इन द, लाइक गवर्नमेंट जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अलग रहेगा, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। लाइक एग्जांपल बिजनेसेस फिक्स असेट में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस आप बोल सकते हो, हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें डिविडेंड मिलता है, हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन टाइप्स के इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक
private investment expenditure. It refers to expenditure made by private businesses. Actually, I am not agreed with the only private businesses. Even household makes this expenditure on replacement, renewals or a new investment. Existing investment को replace करना, existing fixed asset को replace करना, नए fixed asset create करना, वगैरह वगैरह. Then गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के दो एक्सपेंडिचर होंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers to expenditure incurred by government on various administrative services like law and order, defense, education, health. गवर्नमेंट उसका बजट अनाउंस करती है ना, जब 1 फरवरी को बजट आने वाला है देखो, तो गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड कोई एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. Government's investment expenditure refers to expenditure incurred by government on creating infrastructure facilities like construction of the roads, railways, bridges, dams, canals, which are used by the public or business sectors or public for production of goods and services in the economy. Net foreign investments, that is net exports, X minus M. It refers to difference between exports and imports of a country during the period, and net receipts. Right? इंडियंस बाहर काम करे, वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे, राइट, वो वहां पे पैसे ट्रांसफर करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेनर्स यहाँ पे आके जो खर्चा करता है, दैट इज रिसीट ऑफ इंडिया, एंड हमारे लोग जाके वहां पे जो खर्चे करते हैं, दैट इज पेमेंट्स. So difference between expenditures incurred by foreigners on domestic goods and services, वो यहाँ पे आके जो कोई घूमने आ गया इंडिया में, तो he will buy many things, वो यहाँ पे घूमेगा वगैरह, वो जो खर्चा करेगा वो हमारी इनकम हो गई, फॉरेन इनकम बोलो चाहिए तो, फॉरेन लोगों से जो इनकम आई, और हमारे लोग वहां पे जाके घूमने जाते हैं, वहां पे एक्सपेंडिचर करते हैं. So the difference between expenditure incurred by foreigners, which is income of India, and एक्सपेंडिचर इंकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स, हमारे लोग वहां पे जाके एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, उनकी इनकम हो गई ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फॉरेनर्स इंडिया में आके जो खर्चा करेंगे वो उनका खर्चा हमारी इनकम होगी, रिसिट्स. हमारे लोग फॉरेन में जाके जो एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, उनकी इनकम. सो डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो दैट इज यू कैन से राइट. अगर इन यहाँ पे हमें एक एक्सपेंडिचर मिला, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा मिला आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा हमें मिला गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, फिर हमें मिला नेट एक्सपोर्ट एंड नेट रिसीट्स. जब इन सबको साथ में लेते हो तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री पता चलेगा, दैट इज एज पर एक्सपेंडिचर मेथड. व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while estimating the national income by expenditure method? Following precautions should be taken. First precaution, expenditure on all intermediate goods should be ignored. Expenditure on intermediate goods and services should be ignored to avoid double counting. Then expenditure on repurchase, right, repurchase of goods and services should be ignored. Repurchase of second hand goods should be ignored as it is not incurred on currently produced goods. देखो क्या होता है, जो गुड्स 2-3 साल पहले प्रोड्यूस हुए थे, तब जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो उस ईयर में जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उस पे हुआ है. अगर वही गुड्स एंड सर्विसेज आर रीसेल होते हैं एंड उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है, ना ही हम इनकम मेथड में लेते हैं, ना ही हम आउटपुट मेथड में लेते हैं, ना ही हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड में लेते हैं, बिकॉज वो एक्सपेंडिचर भले ही आज हो रहा है बट दोस गुड्स is not produced in the current year. हमें एक्सपेंडिचर किसका ढूंढना है, इस ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका. हमें इनकम मेथड में इनकम किसकी ढूंढनी है, इस ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे उसकी. हमें आउटपुट मेथड में किसका आउटपुट ढूंढना है, इस ईयर में जो यूनिट्स बन रहे उसका. सो करंट ईयर का आउटपुट होना चाहिए, करंट ईयर का सर्विसेज होना चाहिए, उसका आउटपुट, उसकी इनकम या उसकी उस पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा करंट ईयर के, वो ही हम कंसिडर करते हैं. आगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इन द करंट ईयर, उस ईयर के होने चाहिए. आगे, देन बिकॉज दे आर नॉट
करंटली प्रोड्यूस गुड्स. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स. जब मैं आपके पापा उनके सैलरी में से आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो आपकी इनकम होती है, इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करनी है, और वो उनका एक्सपेंडिचर हो गया, उन्होंने आपको पॉकेट मनी दिया, वो उनका एक्सपेंडिचर है, वो भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए. ना ही वो आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है वो इनकम मेथड में आनी चाहिए, ना ही एक्सपेंडिचर मेथड में आनी चाहिए. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट, लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड. जिसको वो ट्रांसफर पेमेंट रिसीव कर रहा है उसकी इनकम भी में भी नहीं लेना चाहिए, इनकम मेथड में भी नहीं लेना चाहिए, और जो दे रहा है वो उसका एक्सपेंडिचर भी नहीं बोलना चाहिए हमने, फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग. आगे मतलब उन्होंने बराबर मेंटेन किया, एक मेथड में एक्सक्लूड है तो दूसरे मेथड में भी वो एक्सक्लूड है. जब मैंने इनकम मेथड में बोला कि ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूड, जब जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है आपके इनकम में नहीं लेनी चाहिए, वैसे जिसने पेमेंट किया है उसका एक्सपेंडिचर भी नहीं मानना चाहिए. आपके पापा की इनकम 1 लाख है तो 1 लाख आपने पूरी की पूरी ली है ना, राइट, और उसमें से 5,000 आपको दिए, तो वो 5,000 आपकी इनकम नहीं बोलना चाहिए, ना ही उनका एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा. एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल like assets like shares, bonds, debentures should not be included. Such transactions do not add to the flow of goods and services. So actual output नहीं है. शेयर्स उतने ही रहते हैं, वही रिपर्चेस 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 होते रहते हैं, परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल. इट इज नॉट एक्चुअल आउटपुट. उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यू शुड इग्नोर दैट. इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड. राइट. एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूड. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमने कंसिडर करने. सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड. इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है. आउट ऑफ दिस मेथड, ध्यान देना यहाँ पे तीनों मेथड्स हो गए. आउट ऑफ दिस मेथड्स, आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड. इंडिया में आउटपुट एंड इनकम मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड. इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए और यूके, इनकम मेथड इज पॉपुलर. व्हाई? बिकॉज वहां पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग बैंकिंग यूज करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं, ऑलमोस्ट वहां पे कंसेप्ट ही अलग है. हमारे यहाँ पे लोगों को इनकम मिलती है और फिर वहां से वो एक्सपेंडिचर करते हैं. वहां पे जो सैलरी वगैरह होती है ना, पहले एक्सपेंडिचर उसमें से जो लाइक एग्जांपल रेंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के यहाँ से माइनस होता है. ईएमआई एम्प्लॉयर ही पे कर देते हैं आपका ईएमआई, और बाकी आपके हाथ में मिलता है. अब हमें यहाँ पे क्या होता है, आपको इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, फिर आप ईएमआई पे करोगे, आप रेंट पे करोगे. वहां पे वैसे जनरली कंसेप्ट नहीं है. बिकॉज आई यूज्ड टू प्रोसेस द लोन्स ऑफ द यूएस पीपल एज वेल. जो फॉरेनर्स थे इंडिया में इन्वेस्ट कर, पुणे में अगर कोई प्रॉपर्टी लेते थे ना, तो उनके फाइल्स मैंने प्रोसेस किए व्हेन आई वाज वर्किंग इन एचडीएफसी. तो उन वहां पे जब हम चेक करते थे ना उनकी पे स्लिप वगैरह, वहां पे बहुत अलग कंसेप्ट है. वहां पे उनको हाथ में जो पैसा मिलता है ना, आफ्टर सब डिडक्शन मिलता है. उनके जो फिक्स पेमेंट्स हो सकते हैं, लाइक एग्जांपल रेंट, एग्जांपल ईएमआई, उन्होंने जो जो ईएमआई पे परचेस किया ना, सब एम्प्लॉयर के यहाँ से माइनस होता था, और फिर उनको हाथ में पैसा मिलता था. तो वहां पे ना सिस्टम बहुत परफेक्ट है. वहां पे बैंकिंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है. पीपल हैज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स. वहां पे बहुत अलग लेवल का, राइट, ये है, आप बोलोगे कि कनेक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसकी वजह से वहां पे इनकम मेथड ज्यादा पॉपुलर है, डेटा भी वहां पे इजीली मिलता है. तो क्या लिखा है ध्यान देना, इन द डेवलप्ड कंट्रीज इनकम मेथड इज पॉपुलर. Income method is popular. Expenditure method is rarely used by any countries because of practical difficulties. In India, CSO, Central Statistical Organization, adopts a combination of both output method and income method to estimate national income of India. हम expenditure method follow नहीं करते, हम या तो output method या तो income method. कोई sectors के लिए like manufacturing sectors के लिए output method, transport professionals के लिए, राइट, हम इनकम मेथड फॉलो करते हैं. देन यहां तक ठीक है. गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, जस्ट मैं पानी पीता हूं. ठीक है. सो किसी के डाउट्स तब तक लिख लेना, आई विल टेक दोस डाउट्स. मैंने अभी तक चेक नहीं किया चैट बॉक्स, अगर किसी के तो मैं ले लूंगा, बाकी लोग आप लिख सकते हो. ये 3 मेथड्स हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज फॉर 8 मार्क्स, कंपल्सरी क्वेश्चन. एक तो मेथड डेफिनेटली रहेगी.
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हेलो. आई एम ऑडिबल. चेक करो. ओके, यस ना. नॉट गेटिंग. Now
यस ओके, ध्यान देना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बाद में सॉर्ट आउट करता हूँ। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स एंड नेशनल इनकम बहुत अलग है। इनकम टैक्स में जो इनकम कंसिडर किए जाएंगे वो नेशनल इनकम में किए जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। इनकम आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जब शेयर्स परचेस सेल हो रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट क्या है? डज इट एक्चुअली लीड्स टू एनी प्रोडक्शन? नहीं, तो वो नहीं लिया जाएगा नेशनल इनकम में। इनकम टैक्स में आएगा वो इनकम। आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, बट नेशनल इनकम में नहीं कंसिडर करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो जो इनकम टैक्स के लिए वो सब नेशनल इनकम के लिए, नॉट नेसेसरी, यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स। नेशनल इनकम में क्या लिखा है कि वो दैट शुड ऐड टू योर करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने चाहिए। बाय परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर्स इट डज नॉट ऐड एनी रियल आउटपुट, कोई रियल आउटपुट नहीं बनता, इसलिए उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। हम आउटपुट के पॉइंट ऑफ से देखो ना, आउटपुट के पॉइंट ऑफ से देखो, सर्विस के पॉइंट ऑफ से देखो, अगर वो करता है तो हम नेशनल इनकम में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो परचेस ऑफ शेयर्स, रियल एसेट्स रीसेल होते हैं, उस पर टैक्सेस लगते हैं, उस पर टैक्स आता है बिकॉज वहां पे राइट वो आउटपुट नहीं देखता, इनकम टैक्स आउटपुट नहीं देखता, इनकम टैक्स बोलता है गेन हुआ है उस पर टैक्स पे करो। नेशनल इनकम में हमें क्या देखना है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है दैट शुड एक्चुअली बिकॉज ऑफ राइट एडिशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस 1 लाख कंपनी के शेयर से वो परचेस डेली बेसिस होगी, नंबर डज नॉट इंक्रीज, इट डज नॉट इंक्रीज एक्चुअल आउटपुट। अगर वो एक्चुअल आउटपुट नहीं इंक्रीज कर रहा है तो भले इनकम जनरेट हो, दैट वोंट बी कंसीडर फॉर द नेशनल इनकम, एज सिंपल एज दैट। दोनों का देखने का तरीका अलग है, नेशनल इनकम एंड इनकम टैक्स बहुत अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ the difficulties in measurement of right national income, let me share the screen again. आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अरे आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं, मतलब तेरे क्वेश्चन समटाइम्स आई फाइंड वेरी सिली क्वेश्चंस। रीजन इज वेरी सिंपल, उसका क्वेश्चन है सर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होने से यू एक्चुअली डोंट नो अकाउंटिंग ऑफ द शेयर साइज, एक्चुअली अकाउंटिंग ऑफ द शेयर्स ही नहीं पता तुझे। कंपनी को एक ही बार पैसा मिलता है भाई, हम शेयर्स परचेस सेल करते हो, कंपनी को पैसा नहीं जाता, या तो मुझे मिलेगा या तुझे मिलेगा। परचेस ऑफ शेयर्स इन आर डन इन द सेकेंडरी मार्केट एंड नॉट इन द प्राइमरी मार्केट। कंपनी को पैसे प्राइमरी मार्केट में मिलता है जो एक ही बार होता है, जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम परचेस सेल करेंगे तो सर कंपनी का पैसे मिलेंगे, कंपनी का आउटपुट इंक्रीज हो गए, यू डोंट नो पैसे किसको जाते हैं। जब शेयर्स परचेस सेल होते हैं इन्वेस्टर्स को पैसे जाते हैं, कंपनी को नहीं जाते वो पैसे, तो कहां से आउटपुट इंक्रीज होगा। शेयर सब्सक्राइब करना अलग एंड परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट। स्टॉक मार्केट में जो दो पार्टीज होते हैं वो दो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी नहीं होती। जब कंपनी शेयर्स फर्स्ट टाइम इश्यू करती वहां पे कंपनी का पिक्चर है, उसके बाद शेयर्स इन्वेस्टर के बीच में परचेस सेल होते हैं, उसके कंपनी का कोई फायदा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका और आउटपुट का कोई लेने देना ही नहीं। बेसिकली मेरे पास एक्सेस मनी, मैं वो डालता हूं शेयर्स में इन एंटिसिपेशन की मैं गेन करूंगा, तो वो पैसा कंपनी को नहीं जाता, जिससे मैं परचेस कर रहा हूं ना उसको वो जाता है। उसमें रियल आउटपुट इंक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं है। एंड उसके वजह से आउटपुट इंक्रीज होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट इंक्रीज हुआ है क्या ये पहले देखो, फिर उसको नेशनल इनकम में लेना है नहीं देखो, उसके बाद उसके वजह से होगा। हमें फ्यूचर का नहीं देखना है, हमें जो हुआ है लास्ट ईयर में जो हुआ है ना वो देखना है, तो ये समझ लेना। आगे तो परचेस ऑफ शेयर्स इज बिटवीन द परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर्स इज नॉट बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर, इट इज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स। वो पैसा कभी भी कंपनी को नहीं जाता। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है ना, वही पैसा कंपनी को मिलता है। अगर कंपनी ने 100 का शेयर अगर 150 पे इश्यू किया है तो कंपनी को 150 मिले होंगे। अगर बाद में उसकी शेयर की प्राइस 1000 होती, कंपनी को 1000 रुपीज नहीं मिलते,
वो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। आगे देन theoretical difficulties or conceptual difficulty, two types of difficulties, theoretical and practical. Theoretical difficulties also called as conceptual difficulties and practical difficulties are called as statistical difficulties. So theoretical difficulties और conceptual difficulties मतलब क्या क्या theoretical problem क्या आता है? Transfer payments. Individual gets pension, unemployment allowance, etc. But whether this transfer payment should be included in the national income or not is a major problem. Include नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. आगे क्या है ध्यान देना. On one hand, they are a part of individual income. On other hand, they are a part of government expenditure as well. Hence, these transfer payments are not included in national income. वही बोल रहे हैं कि जब transfer payment आती है, लेकिन pension ध्यान देना, पेंशन में क्या बोलो, ध्यान देना, अगर आप पेंशन लेते हो इट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा एंड ये पर्सन की इनकम होगी, पर्सन की इनकम होगी, ना ही हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड में लेते हैं, ना ही हम उसको इनकम मेथड में लेते हैं. उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, जो इनकम जनरेट हो रही है ना यहाँ पे, दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय रियल आउटपुट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसकी वजह से एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. उन्होंने पहले कभी सर्विसेज दी है, अब वो रिटायर हुए, उसके लिए उनको पेंशन मिल रही है. सो पेंशन या एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट एक्चुअली क्रिएट एनी आउटपुट, इसलिए हम नेशनल इनकम में लेते नहीं, ना ही हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड में लेंगे, ना ही हम उसको इनकम मेथड में लेंगे, कोई भी मेथड में हम उसको लेंगे नहीं. तो ध्यान देना. आगे ठीक है, आगे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. इलीगल इनकम शुड बी इंक्लूडेड और नॉट. इंडिया में इलीगल इनकम इज हेवी. इंडिया में एक्चुअली इलीगल इनकम बहुत, राइट, ठीक है. इंडिया में इलीगल इनकम तो सबसे ज्यादा है यार, लोग दिखाते नहीं पैसा, ठीक है. इलीगल इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा are not included in the national income, are not included in the national income because illegal income, try to understand, पहले तो बुक्स में आएगी नहीं, कोई अकाउंट फॉर नहीं करेगा, तो पता भी कहां से चलेगा. मैं इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो अंडरस्टेटेड है, बिकॉज ये सब चीजें नहीं आती. इलीगल इनकम इज वेरी कॉमन. या ब्लैक मनी आप बोलो, पीपल डोंट शो, जो अकाउंट फॉर नहीं करते वो ब्लैक मनी होता है, बराबर, तो वो भी किधर आएगा. So illegal incomes are not included, are not included. इनकम इलीगल होगी बट एक्सपेंडिचर तो लीगल होगा ना. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ढूंढना भी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप एक्सपेंडिचर ढूंढ रहे हो तो उसका सोर्स भी पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट, अनपेड सर्विसेज लाइक आपके हाउस वाइफ की सर्विस हो गया, शुड यू इंक्लूड और नॉट. फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ओनली पेड goods and services are considered. Only paid goods and services are considered. However, there are a number of unpaid services which are not accounted in the calculation of the national income. Unpaid services को नहीं लेना है. For example, services of the housewives, services provided out of love, affection, mercy, sympathy, charity are not included in national income. Try to understand. ये सर्विसेज है, एक्चुअली सर्विसेज है, बट हम उनको मेजर नहीं कर सकते. वैसे देखा जाए तो जो आप बोल रहे हो इतने के सर्विसेज जनरेट हुए, एक्चुअली उससे ज्यादा सर्विसेज इकोनॉमी में जनरेट होते हैं, बिकॉज वी डू नॉट कंसीडर अनपेड सर्विसेज. तो जो नेशनल इनकम है मैं वही फिर से दोहराऊंगा, इट इज अंडरस्टेटेड बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट मेजर्ड, विच आर नॉट पेड फॉर. तो राइट, अनपेड सर्विसेज को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे. आगे ट्रांसफर पेमेंट को एक्सक्लूड करना है, इलीगल इनकम को एक्सक्लूड करना है, अनपेड सर्विसेज को एक्सक्लूड करना है. आगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसको इंक्लूड करना है ऑन गेस वर्क. हमने क्या लिखा था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो होता है उसको इंक्लूड करो ऑन गेस वर्क. अब क्या लिखा है ध्यान देना, द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट, hence not accounted for the national income.
हमने वहां पे ऊपर क्या लिखा था, ध्यान देना, राइट। यहाँ पे देखो आउटपुट में प्रिकॉशंस क्या लेने, प्रिकॉशंस क्या लेने थे, यहाँ पे था देखो, नहीं नहीं ये इनकम है, ऊपर कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स should be estimated by guesswork. Imputed value of goods purchased for the self consumption is included. हमें उसको इंक्लूड करना है, बट अमाउंट कहां से पता चलेगी मैडम, कहां से पता चलेगा, ये थ्योरेटिकल, जब हम थ्योरी में लिखा है कि वो इंक्लूड करना है, थ्योरी में लिखा है वो इंक्लूड करना है, बट अमाउंट कहां से पता चलेगी, किस बेसिस पे आप बोलोगे कितना कंज्यूम और कितना कंज्यूम नहीं हुआ है। तो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी हम इंक्लूड ही नहीं करते। आइडियली वो इंक्लूड करना चाहिए, कौन से वैल्यू पे, एस्टिमेटेड वैल्यू पे, बट एस्टिमेटेड वैल्यू क्या रहेगी यही नहीं पता। ये जब आइडियली इंक्लूड होना चाहिए, बट जब हम करने जा रहे हैं इंक्लूड तो किस पे करना चाहिए यही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे हम उसको इग्नोर करते हैं। टू दैट एक्सटेंट योर नेशनल इनकम इज अगेन अंडरस्टैंडेड, राइट। देयरफॉर थियोरेटिकली वो प्रॉब्लम आता है, थियरी में बोला है कि वो इंक्लूड करो, बट वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या किया जाता है, वो एक्सक्लूड किया जाता है। आगे, इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स अकॉर्डिंग टू IMF, राइट, इनकम इन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकम ऑफ foreign firms should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes production work. Example, IBM is working in Pune, तो IBM की जो इनकम है that should be included in the income of India. Infosys working in suppose London, तो वहां की जो उनकी ब्रांच है, वहां का उनका जो सब्सिडरी है, उसकी इनकम लाइक यूके के नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है। सो अगर कोई फॉरेन फर्म इंडिया में काम कर रही है तो उसकी इनकम इंडिया के इसमें लेनी चाहिए या फॉरेन की इसमें लेनी चाहिए, राइट, तो हम इंडिया के इसमें लेंगे। आगे, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज सब्सिडाइज वैल्यू पे होते हैं, तो उनके केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमने क्या लिखा है, वो सब्सिडी को हमें रिवर्स करना होता है ना, सब्सिडी को एक्सक्लूड मतलब सब्सिडी को हम एड बैक करेंगे। थियोरेटिकली वो बोलना इजी कि सब्सिडी को एड बैक करेंगे, एक्चुअल में कैसे होगा ध्यान देना। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज द मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट बिकॉज उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस इज वेरी हाई, बट हमें सब्सिडाइज वैल्यू पे अवेलेबल करवा के मिलता है। As the real value of these services is not known, therefore it is difficult to calculate, right, national income. ये प्रॉब्लम है कि हम मानते, थ्योरी में हमने देखा है, प्रिकॉशन में हमने देखा है कि सब्सिडी को एड बैक करो, बट एड बैक किस बेसिस पे करेंगे, ये थियोरेटिकल डिफिकल्टी है। चेंजिंग प्राइस लेवल, चेंजिंग प्राइस लेवल हमने क्या देखा कि प्रिकॉशन में देखा था कि नेशनल इनकम शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सम बेस ईयर, या वी शुड एक्सक्लूड, राइट, वो जो प्राइस लेवल की वजह से जो चेंज आ रहा है, प्राइसेस की वजह से जो नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है, हमने उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। इज दैट सिंपल? देखो क्या होता है, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम आल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, द नेशनल इनकम में शो इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज। आउटपुट कम हुआ है बट प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइजेस, आपको लगता है कि इनकम इंक्रीज हुई है, एक्चुअल में आउटपुट गिरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हमें आउटपुट देखना है, उसकी प्राइस नहीं देखनी है, ध्यान देना। ऑल्सो व्हेन द प्राइजेस फॉल्स, प्राइजेस कम हो रही है, आउटपुट ज्यादा है बट प्राइजेस कम हो रही है, इसलिए इनकम कम दिख रही है। सो प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से एक्चुअल पिक्चर सामने नहीं आ सकता, ठीक है। द नेशनल इनकम में शो डिक्रीज इवन दो देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। दीज आर द प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? एक, ट्रांसफर पेमेंट्स ढूंढते टाइम प्रॉब्लम आते हैं। इलीगल इनकम पता नहीं होता वो इनकम कितनी लीगल है कितनी इलीगल है, इलीगल इनकम तो पता ही नहीं चलता। अनपेड सर्विसेज की वैल्यू ढूंढना मुश्किल है, इसलिए स्टेट अवे एक्सक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होना चाहिए बट वो कितना है वो पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं बाद में। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं उस कंट्री के इनकम में वो ऐड किए जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्चुअली उसमें सब्सिडी ऐड करनी चाहिए बट वो पता नहीं होता है,
इट इज वेरी डिफिकल्ट कितनी सब्सिडी ऐड करनी है. चेंजिंग प्राइस लेवल्स, तो प्राइस लेवल को कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी प्रॉब्लम रहता है. सो दीज आर द डिफिकल्टीज. ये बोल रहा हूँ, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो ना, तो क्या ट्रांसफर पेमेंट है, क्या ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, उनको एक्चुअली इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इस पे डिबेट्स होते हैं. नहीं, इलीगल इनकम्स, राइट, एक्सपेंडिचर तो होता है, लोग एक्सपेंडिचर लीगल दिखाते हैं, बट इनकम बहुत बार छुपाते हैं. टैक्सेस के लिए लोग एक्सपेंडिचर नहीं है तो भी दिखाएंगे, इनकम नहीं दिखाते, इलीगल इनकम. तो होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टू दैट एक्सटेंट हमारी इनकम जो दिखती है ना वो एक्चुअल में होती नहीं. देन अनपेड सर्विसेज, ये डिफिकल्टीज है, इनके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, इनके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, ये वो बोल रहे हैं, नथिंग एल्स. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज, ध्यान देना. इन प्रैक्टिस a number of difficulties arises in collection of the statistical data required, right, for the estimate of the national income. Problem of double counting. yes, पहले लेक्चर से हम बोल रहे हैं क्या फाइनल गुड्स है और क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, यही कभी कभी ढूंढना मुश्किल होता है, ये प्रैक्टिकली ढूंढना बहुत मुश्किल है. द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज द डबल काउंटिंग. It arises from the failure to distinguish properly between the final and intermediate goods. एग्जैक्ट क्या फाइनल गुड्स है और क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, यही ढूंढना कभी कभी मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर यूज बाय बेकरी इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दैट बाय यूज बाय द हाउस होल्ड इज अ फाइनल प्रोडक्ट. कॉटन यूज बाय एग्जाम्पल, राइट, इन अ टेम्पल इज अ फाइनल प्रोडक्ट. Cotton used by hospital is an intermediate product. Cotton used by a mill is an intermediate product. Try to understand. So मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कॉटन वही है, बट वो कहाँ पे फाइनल है और कहाँ पे इंटरमीडिएट है और वो एक्चुअली कितना है ये ढूंढना मुश्किल है. नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर, लाइक बार्टर ट्रांजैक्शंस भी बहुत बार होते हैं. Right. In India, especially in rural areas, there exist non-monetized sectors. Agriculture, still being in nature of subsistence farming, a major part of the production is partly exchanged for goods and services. That is, they are talking about the barter. ठीक है? It is excluded while calculating national income. वो आता ही नहीं कहाँ पे. Existence of non-monetized sectors. मनी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे ना, बार्टर सिस्टम का तो प्रॉब्लम वही, उसकी मनी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, और वो कहाँ पे आता भी नहीं. गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज फॉर सर्विस एक्सचेंज होते हैं इन द रूरल एरियाज. वो प्रोड्यूस हो रहा है बट वो कहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता चलती, वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है. इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डेटा, ये भी है, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो भी क्वेश्चन मार्क है. एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन द प्रोडक्शन and the cost data related to the crops, adequate and correct data on the production and the cost. कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्चुअल कॉस्ट हुई, जिसका रिलायबल डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट. ऑन रिलेटिंग टू द क्रॉप, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल enterprises are not available in developing countries. Besides this, data of unearned income, accrued incomes, consumption and investment expenditure of the rural and the rural population is also not easily available. Thus, right, this does not reveal the actual size of national income. लोग खुद जानबूझ के डेटा, प्रॉपर डेटा देते नहीं, ऐसे भी होता है, या कभी कभी ओवरस्टेट करते. डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली किसने कितना दिया, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से देगी, हर इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से देगा. तो जो डेप्रिसिएशन P&L को डेबिट हुआ है बहुत सारी कंपनीज में, वो अपने अपने हिसाब से रहेगा, और कितना एक्चुअली देना चाहिए ये भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज हर एसेट की लाइफ अलग अलग होती है, उसकी कंडीशन अलग अलग होती है. तो डेप्रिसिएशन, नेट के डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बट वो किस बेसिस पे माइनस करना है वो भी नहीं एग्जैक्टली क्लियर होता है. डेप्रिसिएशन refers to the wear and tear of the capital assets due to their use in the process of production. There are no uniform, common or accepted standard rates of depreciation applicable to various capital assets. कोई फिक्स असेट, एक ही रेट सब असेट के लिए नहीं है, एक ही मेथड नहीं है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स, राइट. सो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है.
डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation. Capital gain or losses. Capital gains and capital losses which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of the capital assets or changes in the demands are not included in the national income because changes do not result from the current economic activities. भले ही वो गेन है, भले ही वो इनकम जनरेट हुई है, फिर भी नेशनल इनकम में लिया नहीं जाता बिकॉज वो करंट प्रोडक्शन नहीं है. इनकम टैक्स में वो लिया जाएगा, उस पर टैक्स भी पे करना होगा आपको इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट वो गेन नेशनल इनकम के लिए नहीं लिया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन. आगे टू दैट एक्सटेंट नेशनल इनकम ऑब्वियसली अंडरस्टेट हो रही है. Illiteracy and ignorance. People don't know the importance of the recording, maintaining the accounts, right? Giving proper details. उनको नहीं है, उसकी वजह से भी डेटा अवेलेबल नहीं होता. Due to ignorance, try to understand. Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep accounts for their production, so they cannot give information about the quantity or value of their output. Difficulties in classification of working capital. In India, working population is not clearly defined. For instance, farmers in India are not engaged in agriculture round the year. एक सीजन के लिए पर्टिकुलर होते हैं, बाकी ऑफ सीजन में उनको जो चाहिए वो करते हैं, तो वो इनकम में भी वो दिखाते नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकता है, राइट? Obviously, in off season, they engage themselves in alternative occupations. In such a case, it is very difficult to identify their income from that particular occupation. लाइक एग्जाम्पल, कोई बंदा एक प्रॉपर काम करता है तो उसकी इनकम तो आप ढूंढ सकते हो, बट अगर वो उसके साथ कोई दूसरा काम करता है जो विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट या विच इज नॉट हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो वो ढूंढना मुश्किल होता है. तो ये प्रॉब्लम आता है व्हेन यू डू मल्टीपल बिजनेसेस और व्हेन यू डू मल्टीपल जॉब्स और आप ऑफ सीजन में कुछ अलग काम करते हो. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक, राइट? रॉ मटेरियल्स, intermediate goods, semi-finished goods and finished products in the stock of the producers are called as inventory. Inventory में क्या क्या आता है? RM, WIP, intermediate goods, right? And semi-finished goods and final goods. RM, raw material, work in progress and finished goods. ये inventories में आता है, बराबर? आगे are known as inventories. Any mistake in measuring the value of the inventory, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत आ गया तो प्रॉफिट भी गलत आएगा, नेक्स्ट ईयर का भी प्रॉफिट गलत आएगा बिकॉज ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर. ठीक है? एग्जाम्पल, व्हाट इज आउटपुट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स इज क्लोजिंग स्टॉक ना. अगर इसमें से एक गलत आ गया तो परचेस रॉन्ग रहेंगे, सेल्स रॉन्ग रहेंगे. जब क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक गलत जाता है तो ये ऑब्वियसली गलत आएगा. तो वही बोल रहे हैं, राइट? एनी मिस्टेक इन द मेजरिंग ऑफ द इन्वेंट्री विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर. एग्जांपल, उसके पास ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स था, ठीक है? उसके पास 100 यूनिट्स था, उसने सेल किया और उसने प्रोड्यूस किया 900 यूनिट्स प्रोडक्शन, उसके पास 1000 यूनिट्स हो गए. उसने सेल किया, एग्जांपल, उसने सेल किया 800 यूनिट्स, 200 यूनिट्स बाकी है. तो हम बोलेंगे 900 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन द ईयर, हम 900 यूनिट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग में लेंगे. बट अगर यही 200 उसने गलत दिया, अगर उसने बोला मेरे पास खाली 50 यूनिट्स है, गलत तो हुआ, तो सेल गलत दिखेगा, सेल दिखेगा 950 का, या सेल गलत दिखेगा, या अगर सेल उसके पास करेक्ट है 800, सेल है 800 सपोज, तो ये दिखेगा 850, मतलब प्रोडक्शन दिखेगा खाली 750 का. वही वो बोल रहे कि अगर एक आधी भी वैल्यू ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गलत होता है या उसका वैल्यूएशन गलत होता है रुपीज टर्म्स में, अगर वो गलत होता है तो ये जो मिसिंग फिगर है प्रोडक्शन वो भी गलत. चलो आप उसको बोलते कितना प्रोडक्शन है, वो बोलता है मैंने मेंटेन नहीं किया, तो हम उसको बोलेंगे लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बोल, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बोल, इस ईयर का कितना सेल हुआ है वो बोल, हम प्रोडक्शन ढूंढेंगे. मिसिंग फिगर इज आउटपुट.
बट अगर उसमें से कोई भी वैल्यू गलत है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी गलत आएगा ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर आप इन्वेंट्री वैल्यू करते टाइम, राइट, वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन, राइट, any mistake in the measuring of the value of the inventory will distort the value of the final production of the producer. Therefore, valuation of inventories requires careful assessment. So, yes, the practical difficulties. You have to remember these practical difficulties. Problem of double counting, existence of non-monetary sector, barter transaction की वजह से भी बहुत सारे transaction national income में आते नहीं. Inadequate and unreliable data, लोग जो डेटा देते हैं sometimes it is inadequate and unreliable. Then there is no standard rates for the depreciation across the country. ठीक है, तो कि depreciation exactly कितना लेना है वो भी फिक्स नहीं है. Capital gains and losses, वो भले ही गेन्स है, वो भले ही इनकम है, बट वो करंट प्रोडक्शन की नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड करते हैं. Illiteracy and ignorance. Illiteracy and ignorance. People don't know the importance of accounting, maintaining the records. And उसकी वजह से, उनके इस ignorance की वजह से, उनके इस illiteracy की वजह से हमें actual output पता नहीं चलता. Actual उन्हें कितना consume किया वो भी नहीं पता चलता. Difficulties in classification of working capital. Maximum population खाली एक जॉब नहीं करती, they do some side businesses और कुछ अलग काम भी करते हैं. तो उनके जो ये जो ऑफ सीजन में या जो कुछ अलग काम करते हैं उसकी इनकम वो कितना दिखाते हैं वो गारंटी के साथ हम बोल नहीं सकते. वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज वैल्यू करने के भी इंडिया में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, अकाउंटिंग में भी देयर इज नो यूनिफॉर्म फार्मूला. फीफो हो सकता है, लिफो हो सकता है, वेटेड एवरेज हो सकता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड होती है. लाइक रिटेल जो जिन्होंने फाउंडेशन में किया है उनको पता है ये सब मेथड्स, राइट. और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड होती है. तो ऑब्वियसली हर मेथड में अलग अलग एजम्पशंस हैं. तो एग्जैक्ट अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कुछ अलग आता है, ओपनिंग स्टॉक कुछ गलत दिखता है, तो प्रोडक्शन भी गलत दिखेगा. ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So these are your practical difficulties, theoretical difficulties, and some are practical difficulties for 8 marks. For 8 marks. आगे मैडम वो 5 पॉइंट है ना, 5th पॉइंट, उसमें क्या लिखा है. अच्छा मैं ये बोलता हूं, व्हाट इज कैपिटल गेन. सपोज यू हैव ए फ्लैट, यू परचेस फ्लैट 2 years बिफोर, फॉर एग्जांपल 50 lakhs. 2 years बिफोर. टुडे यू sell the flat for 70 lakhs. So this is your cost of acquisition. Cost of acquisition, COA बोलते हैं. Cost of acquisition. Taxation में COA बोलते हैं, cost of acquisition. You sold it for rupees 70 lakhs. This is sales value. Therefore your capital gain, it is short term capital gain. Because अगर 3 साल से ज्यादा तेरी प्रॉपर्टी है, शेयर्स के सिवा अगर कोई दूसरी कैपिटल एसेट आप सेल करते हो जो 3 साल से ज्यादा आप ओनर थे, इफ यू हेल्ड इट फॉर मोर देन 3 years, आपने यहाँ पे 2 साल ही रखी है ना खुद के पास, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई, तो उसका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा. अगर ये 3 साल के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहेगी वो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. दोनों का टैक्स रेट अलग अलग है, इवन दोनों का प्रॉफिट ढूंढने का अलग है. अगर कैपिटल गेन होता है ना तो इसको इंडेक्सेशन किया जाता है, उसको इंडेक्स नंबर्स यूज करके आज के वैल्यू पे लेके आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट टर्म रखा है. ठीक है, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं. आपने 50 lakhs में असेट परचेस की थी, उसको आपने 70 lakhs में सेल किया, फिर 20 lakhs आपका कैपिटल गेन आ गया. सो व्हाट इज द कैपिटल गेन. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज अ कैपिटल गेन. अगर उल्टा होता है, आपने 50 lakhs में ली थी एंड सपोज यू सोल्ड एट 45 lakhs, so I will say there is a short term capital loss of rupees 2 lakhs. अगर 3 साल से ज्यादा होगा तो उसको आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. सो जब कैपिटल असेट्स क्या होते हैं, यू हैव टू गो एंड चेक इन द इनकम टैक्स. लाइक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता. रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता. इफ यू परचेस सेल, उस पे जो गेन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड, सिल्वर, राइट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फ्लैट, इमोबल प्रॉपर्टी, एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, ये जो चीजें हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट.
इवन यूर प्लांटेड मशीनरी, इवन जो बिजनेस से प्लांटेड मशीनरी रखते हैं ना, वो भी कैपिटल एसेट होता है इन इनकम टैक्स। वो भी परचेस सेल होगा तो उस पर जो गेन रहेगा उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऐसे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली है, ठीक है। सो वो जो कैपिटल एसेट्स होंगे उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो कैपिटल गेन होगा, अगर डिक्रीज होगी तो कैपिटल लॉस होगा, देयर विल बी कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ध्यान देना उन्होंने क्या लिखा 5th पॉइंट में, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस which accrue to the property owners by increase, gain because of increase, loss because of decrease in the market value of their capital assets। कैपिटल एसेट्स ये टर्म कहां से आई है? इनकम टैक्स से आई है। और चेंजेस इन द डिमांड्स, प्राइसेस चेंज होती है बिकॉज चेंजेस इन द डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये जो ये 20 लाख का गेन है या 2 लाख का लॉस है, दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि ये असेट 2 साल पहले परचेस की थी, आज उसका सेल हो रहा है, रीसेल हो रहा है, वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है और हम नेशनल इनकम करंट ईयर की ढूंढ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वही लिखा है, राइट, बिकॉज दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, और किसी का डाउट है तो लेट मी चेक। नहीं, ऑफ सीजन में प्रोटेस्ट ऐसे कुछ नहीं है। लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो उसके पीछे कोई रीजन भी होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको आज पॉलिटिकल, बीजेपी ने भी उसको पॉलिटिकल एजेंडा किया है, कांग्रेस ने भी उसको पॉलिटिकल एजेंडा किया है, बट ये उनकी स्ट्राइक आज से नहीं चल रही है, इट इज मोर देन 100 ईयर्स। बट तब बिहार इलेक्शन चल रहे थे इसलिए मीडिया ने भी उसको भाव नहीं लिया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। महाराष्ट्र के लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज महाराष्ट्र का बैकग्राउंड अलग है। ये जो है ना एक जो बाजार समिति हो गई, उसका हम पहले से ही महाराष्ट्र में बहुत लोग फॉलो नहीं करते। आप नासिक में जाओ, आप मेरे एरिया में आओ, जनरली हम बाजार समिति को सेल करते ही नहीं। हमारा मैक्सिमम सेल डायरेक्टली कंपनीज को होता है। नासिक में ग्रेप्स बनते हैं, राइट ना, वो ग्रेप्स डायरेक्टली सेल होते हैं। आप यहाँ पे आओ, मेरे कोकन एरिया में आओ, वहां पे जो आम बनते हैं ना, मैंगोज, वो डायरेक्टली डीलर्स को सेल किए जाते हैं पूरे के पूरे। तो हम जनरली बाजार समिति को सेल, महाराष्ट्र में पहले से इसके अगेंस्ट ही मूवमेंट है, इसलिए महाराष्ट्र के फार्मर जनरली आपको दिखेंगे नहीं वहां पे। बट अगर पंजाब हरियाणा वो बेल्ट पे देखते हो ना, वहां पे उनको मिनिमम प्राइस जो होती है ना वो उनको मिलती है, और वो लोग सब बाजार समिति को सेल करते हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा दिखेंगे। क्या उसमें ऑफ सीजन में वो स्ट्राइक करते हैं? ऐसे नहीं है, राइट। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फार्मर्स एज वेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनके भी कोई प्रॉब्लम्स होंगे, यू शुड कंसिडर द प्रॉब्लम्स एज वेल। समटाइम्स आई फील कि गवर्नमेंट डज नॉट लिसन टू द प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, ये मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस गवर्नमेंट जनरली डजंट अंडरस्टैंड और डज नॉट गिव चांस टू द अदर्स। अपोजिशन इज वाहियात डेफिनेटली। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन को जाने तो दे डोंट हैव ब्रेन, बट मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। सो इतने 100 डेज से अगर प्रोटेस्ट चल रही तो ऑब्वियसली कुछ तो लॉजिक रहेगा। ऐसे नहीं कि उनको पैसे मिल रहे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस वहां पे जाके बैठी इसलिए वो पॉलिटिकल एजेंडा हुआ। एक्चुअल में एवरीवन ट्राइज टू टेक द क्रेडिट, इसमें फार्मर्स की गलती नहीं है। देयर विल बी सम जेन्युइन फार्मर्स एज वेल, तो उनको देख के आप बोल नहीं सकते कि, या कोई लोगों की वजह से हम पूरी प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं कर सकते। एंड आजकल हर चीज को बदनाम करने का इंडिया में ट्रेंड है। कोई भी अच्छी चीज हो उसको भी बदनाम किया जाता है। आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन, मैं कभी भी किसी पार्टी का नहीं हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था, आई सपोर्टेड दैट, आई वाज इन बीएमसीसी। हम लोग कॉलेज में रैली निकलते थे, हम जाते थे उसमें। जब तक कांग्रेस का अगेंस्ट था इसलिए करेक्ट था और आज बीजेपी के अगेंस्ट है इसलिए रॉन्ग है, ऐसे मैं नहीं मानता। कुछ तो रहेगा, बट महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? मैं आपको पहले ही बोला, महाराष्ट्र में बहुत पहले से ही, राइट, लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर देते किसी के साथ, और बाजार समिति को सेल करना मैंडेट, लाइक लोग नहीं करते। ये समझ लेना, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे आप संतरी देखो, नागपुर में जाओ वहां पे संतरी है, राइट। द्राक्ष से जैसे मैंने आपको नासिक में बोला, कोकण में मैंने मैंगोज बोले, डायरेक्टली डीलर्स को सेल करते हैं, डायरेक्टली कंपनीज को सेल करते हैं, पूरे के पूरे फार्म्स। उसमें बाजार समिति को सेल नहीं करते लोग। तो पहले से इसके अगेंस्ट महाराष्ट्र में अपोजिशन है, इसलिए महाराष्ट्र का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, वहां पे वो मिनिमम प्राइस बहुत कॉमन है, उनको वो मिलती है उनको वहां पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप बोलोगे सर वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट है इसलिए, ऐसे नहीं।
हरियाणा के भी लोग वहां पे, वो नॉर्थन यूपी के भी लोग वहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्दर्न यूपी के भी लोग वहां पे, दिल्ली के सराउंडिंग वाले वहां पे एक्चुअली होता है। ऐसे नहीं कि लोग स्ट्राइक करे 100 डेज से बैठे हैं मतलब खाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ऐसे नहीं होता। आजकल हमारा देखने का तरीका भी बहुत अलग हुआ है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा वो गलत है, ऐसे नहीं होता है, राइट। देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, आप सुनो तो प्रॉब्लम्स, सुनेंगे तो समझेंगे। और आप बोलोगे सर उनके राउंड्स हो रहे हैं, ये लोग अड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि देयर कैन बी सम सोल्यूशन यार, देयर कैन बी सम सोल्यूशन होते हैं, आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि हर चीज का ये है या हमेशा फार्मर ने पीछे हटना चाहिए, ऐसे भी नेसेसरी नहीं है। गवर्नमेंट कैन मेक सम एडजस्टमेंट्स, एंड ऐसे नहीं है, ये सेम बिल्स वर पास बाय कांग्रेस एंड तब इन्हीं बिल्स को बीजेपी ने अपोज किया था, ये भी फैक्ट है, समझ लेना। सेम बिल्स, कुछ भी चेंजेस नहीं उन बिल्स में। 2012 या 2011 में जाके चेक करना हिस्ट्री, सेम बिल्स वर पास बाय कांग्रेस एंड बीजेपी बोले फार्मर्स के अगेंस्ट है, एंड सेम बिल्स वर अगेन उन्होंने लाए और अब बोल रहे ये है। मैं बोलता हूं कि पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, एंड मैं तो उसमें जिसमें क्या बोलते हैं उसको, मेरा एनर्जी एग्जॉस्ट होगी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, या मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इससे झगड़े करने से क्या, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, रात में वो साथ में बैठते होंगे, ये आपको भी नहीं पता होगा, तो उनपे हम हमारा रिलेशन कभी खत्म नहीं करने चाहिए। देखो दोस्त, जब दोस्त बात करते हैं ना, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज उसकी वजह से अच्छी अच्छी दोस्ती, अच्छे अच्छे रिलेशन खत्म होते हैं। आप कभी आपके गर्लफ्रेंड के साथ बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हो क्या? कभी नहीं करोगे, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगी आपकी, इसलिए अवॉइड, बिकॉज उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं, उनके फैमिली भी रिलेशन होते हैं, जाके चेक करो एनसीपी एंड शिवसेना के फैमिली रिलेशन है। आपको क्या लगता है कांग्रेस एंड बीजेपी के बहुत सारे एक दूसरे के उनके फैमिली रिलेशन है? मैं मेरे यहाँ पे देखूंगा, हमारे इधर जो फैमिलीज है, एक बीजेपी से है और एक कांग्रेस से, तो जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ेगा, बट घर में ही टिकट रहेगा, तो ऐसे लोगों का क्या फायदा? मैं उनको सपोर्ट करता हूं जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूं। तो इरिस्पेक्ट ऑफ द पार्टी, अगर मुझे पता है कि मेरी एरिया में ये मेरा काम करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है वो मेरे लिए खड़ा रहने वाला है। तो कैंडिडेट को देख के वोटिंग होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को। ये चेंज होने को टाइम लगेगा, ये चेंज होने को टाइम लगेगा। एंड आई क्या बोलते हैं उसको, और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी क्या वो बिल्स पढ़े नहीं है, मैंने बिल्स नहीं पढ़े, बट मैं इतना जानता हूं कि महाराष्ट्र में के लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते, इतने क्यों उसके पीछे नहीं है, बिकॉज वहां पे हम हमारे इधर भी मैं बोलता हूँ ना, हम लोग डाईम वगैरे आमच्याकडे बनतात, आम्ही डायरेक्टली सेल करतो, आम्ही काही बाजार समित्यांना वगैरे नहीं बनवत, नहीं देते। तो पहले से हम बोल रहे हैं क्यों बाजार समिति होनी चाहिए, इसलिए हम नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन बैकग्राउंड बहुत क्रिटिकल है, इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, और जो एजुकेटेड लोग हैं जनरली उसमें पढ़ते नहीं। You will never say Ratan Tata giving comment on these things, Ambani is giving comment on this, because they know कि इसके पीछे अलग ही चीज है। So focus on your areas, वो जो होगा होगा आगे। हाँ, बट कंगना रनौत जैसे कोई भी आके कमेंट करने लगेगा टाइम अगेंस्ट, वो फार्मर्स पे कमेंट करना वगैरह वो गलत है। फिर तो फिर कोई वो जो पंजाबी एक्टर है ना, उसने जो रिप्लाई दिया ना, वो बेस्ट रिप्लाई उसको, उसने उसकी मार के रख दी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वही अगर आप उसके घर को तोड़ना है वो गलत है, उसके सपोर्ट में हूं, लेकिन वहां पे वो लोग वहां पे बैठे वो उसको शाहीन बाग से कनेक्ट कर रही है, वो गलत है, वो डेफिनेटली गलत है। और उस एक्टर ने उसकी जो ली बाद में, वो भी करेक्ट है, लेट इट बी। सो यहाँ पे राइट, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल, मेरे व्यूज है, आपके व्यूज आपके हो सकते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे व्यूज मैच होने चाहिए, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। आई कैन नॉट आस्क कि आप मेरा ही फॉलो करो, मैं आपका ही फॉलो करूं, नॉट नेसेसरी। पॉलिटिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। महाराष्ट्र में हमने देखा है जो इतने सालों से अपोजिशन में थे, दे केम टुगेदर फॉर देयर बेनिफिट। अगर वो उनके बेनिफिट के लिए साथ में आ सकते तो हम हमारे बेनिफिट के लिए ही साथ में आ सकते। सो ये है। अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, देयर इज नो पार्टी एज सच, तुम लोग पार्टी ऊपर, नीचे हम हमारा देखेंगे, ये भी समझ लेना। सो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनाते हैं सब साथ में आ रहे हैं, बट लोकल लेवल पे अलग अलग लड़ेंगे, वो उनके इंटरेस्ट देखते ध्यान देना।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट दिखता है. इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम. ठीक है, लास्ट पॉइंट विल टेक 10 मिनट्स, बस ध्यान देना. इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम. द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम. एंड एक मेरा एक रहेगा, डोंट गो ऑन व्हाट्सएप एंड इंडियन मीडिया देखो ही मत. कुछ अच्छे सीएनबीसी चैनल देखो, उसमें ये चीजें नहीं डिस्कस होती. मैं आपको बोलता हूँ सीएनबीसी देखो, थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करो, ये करो. अगर आप रिपब्लिक देखोगे या आप इंडी टीवी देखोगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि हम कुछ अलग संकट में पड़े, अलग संकट में पड़े. मैं नहीं देखता, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बंद कर दिया वो न्यूज चैनल देखना. मैं अपना सीएनबीसी देखते बैठता हूँ, उसमें मुझे मजा आता है, मैं वही देखता हूँ. चेंज करो, या तो देखो स्पोर्ट देखो चाहिए, उसमें तो लगता है सब हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हमारे लिए बोलते हैं, तो उसमें कास्ट नहीं आता, उसमें रिलीजन नहीं आता, उसमें पार्टी नहीं आती, इंडिया आता है. स्पोर्ट्स देखो, नहीं तो कोई तो मूवी देखो चाहिए. तो आगे फॉर इकोनॉमिक, बिकॉज आपको ये पता है, ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज चैनल्स एंड लाइक आपका मूवीज पर्पस बहुत अलग है. मूवीज का पर्पस इंटरटेनमेंट है, न्यूज चैनल का पर्पस है अवेयरनेस. बट इंडिया में उल्टा हो रहा है. न्यूज चैनल्स आर बिकमिंग entertainment source and movies are becoming they are creating awareness. Try to understand, they are creating awareness. उल्टा हो रहा है, जिसका काम है उल्टा हो रहा है. यही प्रॉब्लम है. एंड एवरी पार्टी ओन्स ए न्यूज चैनल. इंडिया में प्रॉब्लम है कि इंडिया के लिए पिलर होना चाहिए, वो न्यूज चैनल के लिए भी प्रॉपर उसका रेगुलेशन होना चाहिए, वो नहीं इंडिया में. दूसरी बात ये भी, जब आप यूएस में जाओगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखोगे, एवरी न्यूज चैनल हैव डिक्लेयर कि वो किस पार्टी से है, रिपब्लिकन से या डेमोक्रेट से. पहले उन्होंने अनाउंस करके रखते हैं. इट इज मैंडेटरी दिया, आपको बोलना होता है, आपको बोलना होता है किस पार्टी से आप बोलते हो. एंड देयर न्यूज चैनल दे डोंट किसको छोड़ते नहीं, प्रेसिडेंट वगैरह किसको छोड़ते नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते डायरेक्ट. इंडिया में वो हिम्मत नहीं है. अरे हम हमारे एमएलए को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पीएम तो बहुत दूर की बात है. पीएम फिर वो राहुल गांधी हो, अगर होगा नहीं होगा वो अलग बात है. मैं बोल रहा हूँ, या मोदी जी हो या इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, कोई उनको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. बट बाहर वैसे नहीं है. डेमोक्रेसी हमारी खाली मेरे हिसाब से ड्यूरिंग इलेक्शंस होती है, उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं होती. इलेक्शन के 2-3 मंथ हर कोई हमें याद दिलाता है हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक है. वोटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तभी उनको सुन के सब वादे याद आते. 4-5 साल कोई कुछ काम नहीं करता. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. कोई लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, लाइक नितिन गडकरी ने जो रोड का काम किया है लास्ट 5-6 ईयर्स में, इट इज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड. एंड वो अटल बिहारी वाजपेयी से इनहेरिटेंस है, ये भी समझ लें. बिकॉज जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने जो काम किया था, बीच में कांग्रेस ने वो बंद पड़ा था जब उनके 10 साल थे. नितिन गडकरी अगेन लेट टुक द चार्ज एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. उसके लिए हम ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे. मोदी ने जो ये जनधन योजना वगैरह कोई बहुत अच्छा आधार, वो बहुत अच्छा है. बट ये जो आधार है, तब कांग्रेस के टाइम वो लोग अपोज कर रहे थे, अब वो फोर्स कर रहे हैं. मतलब ये भी चीजें समझ लेना. एग्रीकल्चर बिल्स, टू बी वेरी फ्रैंक, फार्म बिल जो भी चल रहा है, मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने पढ़े भी नहीं, तो मैं कमेंट करना भी गलत होता है. बट कोई डायरेक्टली बोलेगा कि फार्मर्स ही रॉन्ग है, तो मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं. एक्चुअल में आप जाके स्टडी करो, सबकी ओपिनियन देखो. उतना टाइम आपके पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं. बट किसके अगेंस्ट डायरेक्टली करना खाली एक पार्टी के लिए, वो मैं कभी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता. और जनरली इन चीजों पे बात भी नहीं करनी चाहिए. सो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी. नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पता चलता है. इन प्रेजेंट टाइम्स नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी. नेशनल इनकम डेटा इज रिगार्डेड अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी. मतलब हमें पता चलता है हमारी इनकम कितनी है, विच इज नोन एज सोशल अकाउंट्स. नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज सोशल अकाउंट्स. इट टेल्स अस हाउ द aggregate of a national income, output and product results from income of different individuals, right? Products of industries,
and the transactions of international trade. So in short, it talks about like इनकम ऑफ द नेशन, हमारे इंडिविजुअल आउटपुट कितना है, इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, इसके बारे में बात करता है। नेशनल पॉलिसीज, नेशनल इनकम के हिसाब से हम नेशनल पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं, राइट। नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स बेसिस फॉर नेशनल पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वेरियस पॉलिसीज। These figures enable us, national income figures enable us to know the direction in which, right? Direction in which इधर पे हाँ, the industrial output, investment and savings change. National income also helps to generate economic models like growth model, investment model, etc. Like example, हम ये देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो हो गया 1991 के बाद, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात तो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हो रहा है, मे बी ड्यूरिंग दिस बीजेपी लेड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि हर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है एंड इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है आगे। देन thus proper measures can be adopted to bring the economy to the right path आगे। So accordingly we can make the decisions। आगे आ गया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हम लाइक एग्जांपल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज एम्बिशन और इज लाइक ड्रीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके लिए जाने के लिए, राइट, उसको जाने के लिए तो क्या प्लान होनी चाहिए। अभी हम कुछ तो 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं, 5 मतलब डबल करनी है, तो हमें कितना आगे क्या करना पड़ेगा, वो प्लानिंग जो रहेगी ना वो यहां से पता चलेगी। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी इसेंशियल। हमें हमारा अभी की सिचुएशन पता चलेगी, वी कैन कीप द टारगेट्स। दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू द कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आउटपुट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। Economic research, national income data are also used by the research scholars of the economies. They make use of the various data of the country's inputs, output, income, saving, investment, consumption, employment, etc., which obtains from the social accounts for study purpose. They help governments, right? Comparison of the standard of living. So हम देख सकते हैं कि मे बी 10 years पहले जो स्टैंडर्ड लिविंग थी और आज की स्टैंडर्ड लिविंग है, राइट, इट इज अ बेटर। सो जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल आल्सो इंप्रूव। तो नेशनल इनकम से पता चलेगा। नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स अस टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफ द पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट ए डिफरेंट टाइम्स। लाइक हम बोलते हैं कि बाहर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर देन इंडिया, बट विद इन इंडिया अगर आप 10 साल के पहले कंपेयर करते तो टुडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर। समझ में आ रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स enables us to know about distribution of income in the country, how incomes get distributed, because national income distribution साइड से देखते हैं ना, इनकम साइड से। so it talks about, right, distribution of income in the country from the data related to wages, rent, interest and the profits. We understood the disparities in the incomes of different sections of the society. So ये सब उसके इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बाकी चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप प्रॉपर इकोनॉमिक्स का भी एज ए सब्जेक्ट लेते हो इन योर लाइफ, यू विल लर्न मेनी थिंग्स। ये जस्ट उसमें से एक छोटा टीजर टाइप है, ट्रेलर भी नहीं है ये, जो भी इट इज लाइक ए टीजर। जब आप एक्चुअल इकोनॉमिक्स का भी फर्दर स्टडीज के लिए लोगे तो you will learn many more things than what I taught you. So try to understand। ये सब है, इसमें है आपके क्या क्या था, ध्यान देना। जस्ट मैं पॉइंट्स लेता हूं। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन इसमें था, राइट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद 2 सेक्टर मॉडल था हमारे सिलेबस में, लाइक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउसहोल्ड। उसके बाद था, राइट, 4 concepts of the national income, 4 concepts of the national income, GDP, फिर उसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, बेस्ड इज नेट नेशनल प्रोडक्ट आगे NNP दैट इज। फिर हमने 3 मेथड्स देखे, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, उनके केस में आउटपुट के दो देखे, फाइनल गुड्स फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच, और हर मेथड के प्रिकॉशंस थे, हर मेथड के कुछ प्रिकॉशंस थे। ये तीनों मेथड्स के बाद इंडिया में आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड फॉलो की जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड जनरली कोई कंट्री फॉलो नहीं करती। देन उसके बाद थे टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज में जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है वो उन्होंने लिखा है, एंड प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज में जो डिफिकल्टीज हो सकती है लाइक डबल काउंटिंग वगैरह, राइट, लोग अकाउंट्स नहीं रखते, इलिटरेसी, इग्नोरेंस वगैरह, वो सब चीजें आती है। एंड द लास्ट पॉइंट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉर ए इकोनॉमी, राइट, फॉर डिसाइडिंग द नेशनल पॉलिसीज, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, economic research, comparison of standard of living with the other countries or within the same country with the different times, and distribution of national income in the form of wages, right, rent, interest and profits. अब उससे हम disparities हम समझ सकते हैं। So this is overall, this chapter is like आप ये कर सकते हो, आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे भी समझ में आएगी, ठीक है। और 8 मार्क्स के लिए डेफिनेटली चैप्टर रहेगा, क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। सो ओके, आई विल अपडेट द लेक्चर्स डेफिनेटली, आज मैं सब लेक्चर्स अपडेट कर दूंगा। अकाउंट्स के मैंने सब किए हैं, इको के बाकी है, मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा चैप्टर था बेसिकली, और इस बहुत हेवी कंटेंट था इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इट्स अबाउट हाउ द कंपनी, हाउ द गवर्नमेंट रेजेस फाइनेंस एंड एक्सेट्रा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यस बराबर, ठीक है। Okay, chalo, I will update today the lectures. You will get everything. Thank you.